আপোনালোকে স্বাগতম জনাই মই নৱগগৈ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যেন সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিবিদ হিচাপে পৰিচিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কিয়নো সদনত গৌৰৱ গগৈ যি কয় সেই কথা যেন শুনিবলৈ এতিয়া সকলো বাধ্য হৈ পৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ ভাষণত যেন এতিয়া এক প্ৰকাৰে মৌন হৈ পৰে শাসক পক্ষ। বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন যুক্তি সহকাৰে গৌৰৱ গগৈ ভাষণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেনে এক শেহতীয়াভাৱে সদনত দিয়া এক ভাষণ গৌৰৱ গগৈ এক ভাষণ সামাজিক মাধ্যমত বৰ্তমান তীব্ৰ ৰূপত ভাইৰেল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, ব্যাপক চৰ্চিত হৈছে যে গৌৰৱ গগৈ অসমৰ বাবে সঁচাই এজন গৌৰৱ। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ ব্যাপক চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সদনত গৌৰৱ গগৈ দিয়া এটা ভাষণ বৰ্তমান ব্যাপক ভাইৰেল হৈছে আৰু উদাত্ত কণ্ঠৰে গৌৰৱ গগৈ দিয়া ভাষণ শুনিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে এতিয়া শাসক পক্ষ বাধ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। গৌৰৱে কি কয় বা কি ক'বলৈ গৈ আছে সেয়া শুনাটো যেন এক প্ৰকাৰে বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে আৰু যুক্তি সহকাৰে শাসক পক্ষক কঠোৰ সমালোচনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু দেশ সলনি হোৱাৰ যুক্তিৰে অসমক প্ৰাধান্য দিয়াৰো আহ্বান জনাইছে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আগৰ দৰে হৈ থকা নাই, এতিয়া প্ৰাধান্য দিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। এনে কিছু বিষয় যিবোৰত এক প্ৰকাৰে মৌন হ'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে এতিয়া শাসক পক্ষ আৰু গৌৰৱৰ কথাই বিভিন্ন সময়ত যেন এতিয়া হলঠেকত পেলাইছে NDA চৰকাৰক হলঠেকত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চিত হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যি উদাত্ত ভাষণ, সেই উদাত্ত ভাষণে যেন এতিয়া সদন কপোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, দেশৰ ৰাজনীতি কঁপাই গৈছে। সদনত গৌৰৱ গগৈ দিয়া এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ ৰূপত ভাইৰেল হৈছে যে সদনত গৌৰৱ গগৈ যি ভাষণ, যি উদাত্ত কণ্ঠ, সেই ভাষণ বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গৌৰৱ গগৈয়ে বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন সময়ত এতিয়া যুক্তি সহকাৰে তথ্য সহকাৰে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই যি ভাষণ, সেই ভাষণ প্ৰদান কৰোঁতে গৌৰৱ গগৈ দিয়া ভাষণৰ সময়ত শাসক বিৰোধী সকলো যেন মৌন হৈ পৰে। গৌৰৱ গগৈ কি কয় সকলোৱে যেন সন্তৰ্পণে শুনিবলৈ বাধ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সদনৰ মজিয়াত এই পূৰ্বতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ দিয়া এক বিশেষ ভাষণৰ কিছু ক্ৰিয়দাংশ আমাৰ হাতত আছে, যিটো সামাজিক মাধ্যমত বৰ্তমান তীব্ৰ ৰূপত ভাইৰেল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিটো উদাত্ত কণ্ঠৰে গৌৰৱ গগৈ বিভিন্ন তথ্য সহকাৰে যুক্তি সহকাৰে মন্তব্য ৰাখিছে, ভাষণ দিছে। সেই ভাষণৰ কিছু ক্ৰিয়দাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। डरते नहीं हैं। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का, वो हमने प्रचार में भी देखा। बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाठा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे। इसीलिए मैं देशवासियों के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी, कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नजारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। ये है ताकत लोकतंत्र की, जहां पे सत्ता पक्ष हो, जहां पे विपक्ष हो। अगर आपके पास सत्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो, अगर हम विपक्ष में हैं इसका मतलब हम गलत है, ये इसका मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जनता जनार्दन निर्धारित करती है कि वो किसको राय को स्वीकारता है, चाहे वो सत्ता हो का विपक्ष को। और इसीलिए आज देश बदल चुका है उत्तर पूर्वांचल से, जहां से आज मणिपुर के 2 सांसद हम जीत के आए हैं। नागालैंड में हम पिछले बार जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो वो 1996 में थी, अब आज दोबारा हम 2024 में जीत के आए हैं। मेघालय में इनके जो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं, वो पिछले सीट हम 1996-98 में हम जीते थे, आज दोबारा वो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं। आज NDA को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है। मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में 1 सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। मैं धन्यवाद करना
चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो, लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से डरते नहीं है। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का, वो हमने प्रचार में भी देखा। बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाठा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे। इसीलिए मैं देशवासियों के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी, कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नजारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। ये है ताकत लोकतंत्र की, जहां पे सत्ता पक्ष हो, जहां पे विपक्ष हो। अगर आपके पास सत्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो, अगर हम विपक्ष में हैं इसका मतलब हम गलत है, ये इसका मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जनता जनार्दन निर्धारित करती है कि वो किसको राय को स्वीकारता है, चाहे वो सत्ता हो का विपक्ष को। और इसीलिए आज देश बदल चुका है उत्तर पूर्वांचल से, जहां से आज मणिपुर के 2 सांसद हम जीत के आए हैं। नागालैंड में हम पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो वो 1996 में थी, अब आज दोबारा हम 2024 में जीत के आए हैं। मेघालय में इनके जो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं, वो पिछले सीट हम 1996-98 में हम जीते थे, आज दोबारा वो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं। आज एनडीए को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है। मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में 1 सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो, लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से डरते नहीं है। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का, वो हमने प्रचार में भी देखा। बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाठा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे। इसीलिए मैं देशवासियों के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी, कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नजारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। ये है ताकत लोकतंत्र की, जहां पे सत्ता पक्ष हो, जहां पे विपक्ष हो। अगर आपके पास सत्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो, अगर हम विपक्ष में हैं इसका मतलब हम गलत है, ये इसका मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जनता जनार्दन निर्धारित करती है कि वो किसको राय को स्वीकारता है, चाहे वो सत्ता हो का विपक्ष को। और इसीलिए आज देश बदल चुका है उत्तर पूर्वांचल से, जहां से आज मणिपुर के 2 सांसद हम जीत के आए हैं। नागालैंड में हम पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो वो 1996 में थी, अब आज दोबारा हम 2024 में जीत के आए हैं। मेघालय में इनके जो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं, वो पिछले सीट हम 1996-98 में हम जीते थे, आज दोबारा वो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं। आज एनडीए को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है। मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में 1 सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। मैं धन्यवाद करना
चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो, लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से डरते नहीं है। और दूसरा जो उनका अस्त्र है